اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے مکان سے بیدار کرتے ہیں اور خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں اور آپ کو جنتی جوڑا پہنا کر براق پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ ہوتے ہوئے بیت المقدس میں تمام انبیاء نبیوں کی امامت فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہوئے سب سے سلام و نیاز کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سدرۃ المنتہا پہ جب میرے آقا گئے تو یہ کائنات جو ہے یعنی رک گیا، کائنات ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ کیونکہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح ہیں، کائنات کی جان ہیں۔ جس طرح جسم میں جب تک جان رہتا ہے تو یعنی جسم جو ہے حرکت کرتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا جب معراج پہ گئے، اس کائنات سے گئے تو کائنات ٹھہر گیا، کائنات رک گیا، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں اور عالم کی یعنی اس کائنات عالم کی روح ہیں۔ اور بتائیں کہ سدرۃ المنتہا وہ نوری شجر ہے، جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ یہیں آ کر ٹھہرتی ہے، اور جو اوپر سے نیچے آتی وہ بھی یہیں آ کر رکتی ہے، یہیں پر آ کر رکتی ہے۔ اس نوری درخت کی خوبصورتی کون بیان کر سکتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس درخت سے 4 نہریں جاری ہیں۔ ان 4 میں سے ایک نہر کوثر ہے، جس کی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ اللہ یعنی کہ جب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور اب آگے جانے کی مجھے طاقت نہیں ہے، لیکن ایک عرض ہے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا کہ حضور قیامت کے روز جب آپ کی امت یعنی پلسرات سے گزرے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں، تاکہ آپ کی امت نہایت آسانی کے ساتھ مجھے سرفراز کرتی ہوئی پار اتر جائے۔ اللہ یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس التجا کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے پھر میرے لیے رفرف آیا، وہ ایک مسند یعنی سبز زرین نورانی تھی مثل تخت رواں کی، جس پر میں سوار ہو کے عرش معلیٰ تک یعنی پہنچا، عرش تک پہنچا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قریب عرش پہنچے، شافی روزے ججا خیال آیا پاؤں سے نالین کو کروں جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے عرش پر طالب نالین ہے چوم لینے دیجئے، عرش بھی بے چین ہے چوم لینے دیجئے، کہ مزاج کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، بہت دنوں بعد فقر یوسف و یعقوب آیا ہے، گئے جب عرش پہ سرکار تو رب نے فرمایا فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ جب میں عرش معلیٰ پہ گیا تو یعنی کہ عرش معلیٰ پہ یعنی گیا تو ہر گوشہ پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آواز آئی، ایک ندا آئی کہ یا محمد ادنو قریب آئیے، اے میرے حبیب قریب آئیے، اے میرے حبیب قریب آئیے۔ اللہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اے اسلام کی شہزادیوں، کیا مبارک رات تھی، کیا برکتوں والی رات تھی، کیا رحمتوں والی رات تھی۔ یعنی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میری اور میری امت کے لیے تیری طرف سے کیا تحفہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے حبیب تیرا ذکر یعنی ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا، نمازوں میں ہمیشہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا، اسلام، جہاد، نماز، صدقہ، روزے، امر بالمعروف یعنی تمام باتیں یعنی آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، اور یہ نماز آپ کی امت کے لیے تحفہ
यानी कि मेरे आका को नमाज का तोहफा दिया। और बता दें कि और बताएं कि जो है मेरे यानी कि अल्लाह ने कहा कि अरे मेरे हबीब आ गए, जी मौला आ गया। तो यानी रिवायतों में आया है कि यानी कि मेरे परवरदिगार आलम ने पूछा महबूब क्या लाए हो, महबूब क्या लाए हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारे एला मैं कुछ नहीं लाया हूँ, उम्मत के गुनाह लाया हूँ, तेरी नजरे करम चाहता हूँ। जो है मौला मैं कुछ नहीं लाया हूँ, उम्मत के गुनाह लाया हूँ, आपकी रहमत की निगाह चाहता हूँ। अल्लाह 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 अपने महबूब से कितना मोहब्बत करता है कि अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब मैं तेरी उम्मत पर रहमत नाजिल करूँगा और उनकी तेरे उम्मत के बुराइयों को नेकियों में बदल दूंगा। जो मुझे पुकारेगा उसका जवाब दूंगा, जो मांगेगा उसे बेहिसाब दूंगा, जो मुझ पर भरोसा करेगा हर फिक्र से लापरवाह कर दूंगा, उसके ऐबों को छुपाऊंगा। आखिरत में ए महबूब आपको शफी बनाऊंगा, आपकी शान शफाअत और आपकी शान रहमत दिखाऊंगा। ए मेरे महबूब, चूँकि महबूब को महबूब से बातें करना अच्छा मालूम होता है, इस वजह से हिसाब किताब लूँगा, वरना चाहूँगा तो बिला हिसाबो किताब बख्श दूंगा। गर्ज की जो आप चाहेंगे वो होगा, आपसे मोहब्बत करेगा उसका तो बेड़ा पार है। सुबहान अल्लाह की दो आलम खुदा की रज़ा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह फरमाता है कि जाओ ऐ जिब्रील जाओ, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को जो है जन्नत और दोज़ख दिखा दीजिए कि जो जो आपका फरमा बरदार होगा, जो मेरे हबीब को चाहने वाला होगा, उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाला होगा, जो फरमा बरदार होगा उसके लिए तो जन्नत और उसके तमाम नियामतें यानी उसके लिए रखा हुआ है। और जो आपका नाफरमान होगा, आपका मुनकर होगा, आपको झुटलाने वाला होगा, उसके लिए दोज़ख का आग जो है दोजख की आग तैयार कर रखा है। पीप और मेवा से यानी नहरें जारी की है और यानी बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े सांप और बिच्छू रखे हैं। अल्लाह अल्लाह जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ जाने लगे तो मेरे आका फरमाते हे जिब्रील क्या मुझसे पहले भी जन्नत में कोई जाएगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह, यानी कि जो आपसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो आपसे प्यार करेगा वो जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह आप सबकुन की कुंजी तो आप हैं, आपसे पहले जन्नत में कोई नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते हे जिब्रील मैं किसी के कदमों की आहट अपने आगे आगे पा रहा हूँ। हे जिब्रील कोई मुझसे आगे आगे जा रहा है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह आपका गुलाम, आपका बिलाल, आपका मुअज्जिन यानी मदीना की गलियों में चल रहा है, उसके जो है चलने की उसके कदमों की आहट जन्नत में आ रही। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब गौर करिए जो है मेरे आका जो है जन्नत की सैर करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरे जन्नत की सैर करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब जन्नत में जाते हैं तो क्या फिर आपने यानी ऐसे गिरोह को देखा जो काश्तकारी कर रहे हैं और बोने के साथ ही फौरन खेत को तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, एक दाना बोती है 1000 दाना पाते हैं। हुजूर ने पूछा ये कौन खुश नसीब है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के वास्ते जिहाद करने वाले लोग हैं जिन्होंने कुफार से मुकाबला किया, और सबसे बड़ा जिहाद ये है कि अपने नफ्स से मुकाबला किया। अब गौर करिएगा फिर मेरे आका जब जहन्नम में जाते हैं, जहन्नम की तरफ जाते हैं तो यानी एक कौम को हुजूर ने देखा कि जिनके सरों पर गरज से मारे जाते हैं, पत्थरों से कुचले जाते हैं और फिर असली हालत में आ जाते हैं। ये लोग बड़ी जलीलो खार हालत में नजर आते हैं। हज़रत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये बेनमाजी लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह हर मुसलमान को नमाजी बना दे। फिर एक मकाम पर मेरे आका मेरे आका को ऐसे लोग भी नजर आए जो बरहना जिस्म है, सिर्फ लंगोटियाँ बांधे हैं, जिल्लत ख्वारी में बड़े हैं, दो जकिया को पीप और मेवाद खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पूछा गया हे जिब्रील ये कौन मनहूस है? अर्ज किया कि हुजूर ये ज़कात ना देने वाले कंजूस हैं। अल्लाह तबारक व तआला यानी हर मुसलमान को ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। फिर मेरे आका यानी कुछ मर्दों और औरतों को देखा कि वो पाक ताहिर आला दर्जा का हलाल गोश्त पका हुआ छोड़कर नजिस नापाक सड़ा गला हराम गोश्त को कच्चा नोच खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर अपनी पराई
हलाल बीवियों को छोड़कर पराई औरतों से दिल खुश किया करते हैं, और वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को छोड़कर गैर मर्दों से मुंह काला किया करती हैं। माज़अल्लाह। एक रिवायत में आया है कि बदकार लोग ऐसे आग के तंदूर में जलते नजर आएंगे जिनका मुंह ऊपर से छोटा होगा। सब जलते जलते उबलते हुए और ऊपर आ जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। बड़ी दुश्वारी में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को महफूज रखे। ये बड़ा सख्त गुनाह है, कबीरा है। कुरान पाक में इसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। अब गौर फरमाइए कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम को देखे तो बड़ा अफसरदा हो गए, और उसके बाद मेरे अल्लाह ने के पास आए तो अल्लाह से कहने लगे, परवरदिगार आलम, जब कोई मेहमान आता है तो उसे कुछ तोहफा दिया जाता है, या ये बारी ताला मेरे लिए क्या तोहफा है, क्या तोहफा इनायत फरमा रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज देता हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, कि सब इबादतें बदनी और माली अल्लाह के वास्ते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो जब फरिश्तों ने, तब मेरे आका ने फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब फिर फरिश्तों ने जब सुना कि अल्लाह उसके रसूल की कि गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह उसके रसूल की आमने सामने गुफ्तगू हो रही है, तो कि बड़े खुश मुसर्रत में कहा कि हाँ यही होना चाहिए। जब ऐसे वाहिद ला शरीक का दरबार है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अब्द खास और फिर खुदा का रसूल है, लिहाजा जब रसूल का हिस्सा मिला तो रसूल के आशिकों को भी ज़रूर मिलना चाहिए। और हाँ, मैं इस बात की गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। मेरे आका 50 वक्त की नमाज लेकर जब कि वापस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नबी कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारे नबी तो 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में तब्दील करा दिया। गौर करिएगा कि जब मेरे आका 50 वक्त की नमाज लेकर छठे आसमान पे पहुंचते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कौन सा तोहफा दिया, अल्लाह ने आपको कौन सा तोहफा इनायत फरमाया। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त नमाज दिए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कि मैंने बनी इसराइल को देखा है, कि वो 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाइए इसमें तकफीर कराइए, जाइए इसमें कम कराइए। मेरे आका कि फिर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मेरी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा, महबूब जाओ 5 कम कर दिया। फिर मेरे आका छठे आसमान पे आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। फिर मेरे आका जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, इसी तरह 9 मरतबा जाते हैं, 50 में से सिफर 0 हट जाता है, 5 वक्त की नमाज बचती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी भी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। अब मेरे आका ये भी ख्याल किया कि हर बार 5 कम हो रही, अब की जाएंगे तो सफाया हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मुझे शर्म आती है, अल्लाह की बारगाह में मुझे हया आती है, अब मैं कम कराने नहीं जाऊँगा। अब गौर करिएगा, फिर अल्लाह के यहाँ से निदा आई, अल्लाह के यहाँ से आवाज़ आई, ऐ महबूब सुनो, मैंने 50 को 5 में तब्दील तो कर दिया है, लेकिन मेरा कौल बदल नहीं सकता। तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, उसको सवाब 50 वक्त का मिलेगा, कि एक के बदले मैं 10 नेकी उसको अता करूँगा। अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ये एहसान क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी था कि वो जब कोहे तूर पर गए थे, अल्लाह के नूर तजल्लियात को देखना चाहते थे, तो देख नहीं सके, इसलिए वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह बार जाए और अल्लाह के नूर को देख कर आए, तो रसूलुल्लाह के आंखों में अल्लाह का नूर देख लूँ।